So, as Stuveli Technology Private Limited has a successful track record in the field of academia, research, training, recruitment, and job assistance. Since its inception in 2018, we also offer training internships for all levels of professional world. It starts from plus two level to seasoned professional. We in Stuveli Technology emphasize academic and research development, as no civilization can survive without education and can't progress without research. So we work with each applicant to prepare them for employment ready. As Stuveli Technology bridges the gap between employer and employee via industry product specific selection and pre-employment training. Just for a quick look, I'm just sharing my screen. I'll just show you all the unique services which Stuveli family holds. Is my screen visible, right? Yes. Yes, ma'am. So we have learning and teaching platform, which is prive.com. For training internship, we have studentturn.com. For build your resume as professional resume, we have resumotion.com. For job portal, we have nagrojan.com, like searching job nearby your location, we have nagrojan.com. For education, like searching colleges, universities, we have vidyavan.com. We have psychometric test, which is sudaksha.com, and for research, we have anushram.com. So these are the unique services which Stuveli family holds. Okay. So Shivangi ma'am, you can start from here. Okay. Hello everyone. My name Hi, is ma'am. Shivangi Mohan, and I'm your digital marketing trainer. So today is just a basic introduction on digital marketing. तो before starting digital marketing, मुझे आप लोगों से भी कुछ जानना है कि आप लोग before joining Stu Valley, आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या-क्या रिसर्च किया? क्यों डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप मतलब आप लोग ने क्यों ज्वाइन किया, क्या सोचा, या फिर किसी को जॉब का था, या फिर कहाँ से डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप लोगों को मींस एक आप बोल सकते हो एनर्जी आई टू ज्वाइन दिस कोर्स फॉर योर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव? फील फ्री, आप लोग कोई भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे. Hi, ma'am. हाय. This is Nikhil, हाय and from निखिल. last 3 years, I am working as a digital marketing executive, where my ओके. major role is social media marketing and LinkedIn marketing, lead generations. So I want to more over leads like Google Ads and Facebook Ads plus whole and SEO executive. So ओके. that's why for this I am my last 1 year target is so digital marketing manager and to become a digital marketing manager. So that's why overall I need a digital marketing practical knowledge. So ओके. that's why I'm here to join. ग्रेट ग्रेट निखिल. सो और किसी को भी ऐसे आशीष, दीपक, किम, नेहा, शिवम, वैष्णवी, रुशांक? ओके. सी डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली अभी अपने स्क्रीन शेयर नहीं किया है, ठीक है. सो डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली आज के टाइम पे अगर देखा जाए ना, सो बहुत इजी भी बोल सकते हैं और बहुत आप बोल सकते हो कि अब वो न्यू वाली चीज अभी डिजिटल मार्केटिंग में अभी रही नहीं है. वो इस केस में कि कोविड वाला अगर टाइम हम लोग ले, कोविड वाला सिनेरियो ले, तो उस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग का एक बूम था, बिकॉज अब टेक्नोलॉजी है. तो आने वाले टाइम पे टेक्नोलॉजीज भी अपने आप को आप बोल सकते हो डिवाइड करती है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में भी वो वैसी जाती है. बट हाँ, अभी भी अगर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, बहुत सारे ऐसे आप बोल सकते हो बिजनेसेस हैं जिनके लिए लाइक आपके ई कॉमर्स हो गए, सर्विस बेस्ड हो गए, जहां पे अभी भी डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है. अब रियल एस्टेट वाले हो गए, जैसे कि अभी शायद निखिल ने बोला कि उन्होंने लीड जनरेशन और सोशल मीडिया इन सब पे उनका कमांड है और उनको और भी आगे सीखना है लीड्स के लिए. बट हाँ, लीड्स के लिए हो गए, आपके कंपनीज प्रमोशंस के लिए हो गए, आपके बिजनेस के ग्रो के लिए हो गए, इनके लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत वास्ट है. सी, हर कंट्री में डिजिटल मार्केटिंग करने का तरीका बहुत अलग अलग है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है. जैसे इंडिया का मे बी थोड़ा सा अपना ट्रेडिशनल वे को फॉलो करते हुए तरीका चलता है, मे बी फॉरेन कंट्रीज में और आप बोल सकते हो डिफरेंट तरीका चलता होगा. सेम एज डिजिटल मार्केटिंग के भी ना, या फिर आप बोल सकते हो सिर्फ स्पेशली मार्केटिंग के ही ना, बहुत डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने गोरिल्ला मार्केटिंग सुना होगा, बहुत कॉमन वर्ड है ये गोरिल्ला मार्केटिंग. सो
अब अगर हम लोग बात करें अलग अलग कंट्रीज की, तो चाइना में अगर आप लोग देखते होंगे वहां पे होर्डिंग सिस्टम बहुत ज्यादा है। आप लोग जितने भी वेब सीरीज देखते होंगे, जिनको भी कोरियन वेब सीरीज और इन सब का शौक होगा, तो आप लोग उस पे देखते होंगे स्ट्रीट्स पे आप लोगों को ना बहुत ज्यादा होर्डिंग्स दिखते होंगे, जिसमें आपको 3D होर्डिंग्स दिखते होंगे और डिफरेंट डिफरेंट मतलब आपको क्रिएटिविटी दिखती होगी। तो अब चाइना का मार्केटिंग करने का तरीका क्या हो गया, उनका होर्डिंग वाला प्रोसीजर हो गया है। सेम एज थोड़ा सा और अगर शिफ्ट हो जाए, तो आप लोगों ने इसका सुना होगा रेडबुल का किसी ने मार्केटिंग के बारे में सुना था कि रेडबुल मार्केटिंग कैसे होती है? किसी को उसका यस, हिस्ट्री का यस याद मैम, है कि यस मैम। हाँ, कि उन्होंने उन्होंने अपने खाली हाँ, कैंस चलाते थे पूरे कंट्री, एग्जैक्टली पूरे उसमें एरिया में। एग्जैक्टली कि उन लोग ने क्या किया था कि अपने कंट्री के हर एक डस्टबिन के अंदर ना जितने भी क्या बोलते हैं एम्प्टी कैंस होते हैं ना, सब पुट कर दिए थे। तो फिर लोगों को लगा कि भाई ऐसा कौन सा ब्रांड आया है जो इतने लोग पागल हुए जा रहे हैं। सेम एज इंडिया में अगर आपने उन्होंने बालाजी का नाम सुना होगा, बालाजी चिप्स का नाम सुना होगा, तो उसका क्या हुआ था कि मार्केटिंग करने का तरीका ही अलग था। उनका माउथ टू माउथ मार्केटिंग हुआ था, उनका कोई डिजिटल मार्केटिंग नहीं था, उनका माउथ टू माउथ। हाँ, ये डस्टबिन वाला क्या बोल रहे थे, क्या हुआ था उसमें? अच्छा, रेडबुल वाले में क्या हुआ था कि उन्होंने एम्प्टी कैंस जो थे ना, वो स्ट्रीट के जितने भी आपके डस्टबिन होते हैं ना, उन्होंने उसमें डेली रात को, मॉर्निंग में नहीं, जब भी रात को खाली जहां पे भी डस्टबिन मिलेगा वहां पे ढेर सारे आपके एम्प्टी कैंस जो होते हैं रेडबुल के, वो वहां वो पुट करके चले जाते थे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग अगर कोई देखेगा कि इतना गार्बेज सिर्फ एक ही कैन से भरा हुआ है, तो एक आप में क्यूरोसिटी आती है ना कि भाई ये कैसा ब्रांड है आपका, ये क्या है। तो फिर आपसे जो वेंडर्स होते हैं वो कांटेक्ट करने की कोशिश करना स्टार्ट करते हैं। तो ये रेडबुल वाला था। ऐसे ही इंडिया में बालाजी का था, जो माउथ टू माउथ आप बोल सकते हो, या कस्टमर टू कस्टमर आप ऐसे बोल सकते हो मार्केटिंग का। कस्टमर टू कस्टमर नहीं, आपके ये सॉरी सेल्स टू कस्टमर का आप बोल सकते हो कि हर एक जो भी आपके जनरल स्टोर्स शॉप्स थी ना, उस पे जा जाके जो भी क्या बोलते हैं बालाजी के वर्कर्स थे या फिर जो भी उनके एम्प्लॉयज थे, वो जाके सिर्फ एक चिप्स का नाम लेते थे। क्या बालाजी आपके पास है, क्या बालाजी आपके पास है, बालाजी चिप्स आपके पास है? तो वो इस तरह से डेली ऐसे ऐसे जाते रहते थे। क्यों? क्योंकि भाई अगर मानिए आप कोई भी आप बोल सकते हो ओनर, अपने कोई भी शॉप का ओनर ये नहीं चाहेगा कि उसका कस्टमर किसी एक प्रोडक्ट के लिए उससे दूर है, इवन वो 10 रुपीज का ही प्रोडक्ट क्यों ना हो, वो कभी नहीं चाहेगा इस चीज को लेकर। तो उस टाइम के बाद वो 1 मंथ यही सिनेरियो चलता रहा। तो फिर क्या हुआ कि भाई लोग वेंडर्स जितने थे वो डिमांड करने लगे कि भाई मेरे को दो बालाजी के जो चिप्स है वो मेरे आप शॉप्स पे रखना स्टार्ट करो, बिकॉज इसकी हाई डिमांड आ रही है। तो डिजिटल मार्केटिंग भी ऐसा ही है। अब लोगों को ये लगता है कि भाई हर कंट्री, हर सिटीज की मार्केटिंग अलग 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 तरीके से होती है और हर का अलग अलग नाम है, बट ये सारे के सारे आपके डिजिटल मार्केटिंग या गोरिल्ला मार्केटिंग के अंदर आते हैं। अब इंडिया में इतना आप देखे होगे होर्डिंग्स का मतलब आप बोल सकते हो ट्रेंड नहीं है, बट स्टिल जितने भी रियल एस्टेट्स वाले होते हैं वो अभी भी अपने होर्डिंग्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं लगता है कि 1% क्या 0.5% कहीं ना कहीं मेरे लिए यूजफुल होगा। अब डिजिटल मार्केटिंग आपका देखिए बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए होता है। बिजनेस को ग्रो करने से कहने का मतलब ये है कि चाहे वो कैसा भी बिजनेस आपका हो, इधर वो आपका बोल सकते हो आप ये कोई आर्ट्स एंड क्राफ्ट का बिजनेस हो, चाहे वो आपका बोल सकते हो कि रियल एस्टेट का हो, सर्विस का हो, एजेंसीज का हो, कॉस्मेटिक्स का हो, कैसा भी आपका बिजनेस हो, इनिशियल लेवल पे अगर आपको कहीं पे भी अपनी बिजनेस को सेट करना है, अगर आपको लोगों तक पहुंचाने के लिए कहीं एक फर्स्ट स्टेप पे आपको सेट करना है, तो वो कहीं ना कहीं आपको डिजिटल मार्केटिंग ही हेल्प कर पाएगा। डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट सेल के लिए ही नहीं होता, आपके कंपनी के बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए भी होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके बिजनेस तक क्या हो, अट्रैक्ट करें। ठीक है। अब जैसे कि हम लोग ने मार्केटिंग पढ़ा कि अलग अलग तरह की होती है, बट मार्केटिंग करने का भी तरीका बहुत डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी कोई भी मार्केटिंग कर दो। मार्केटिंग करने का तरीका बहुत सिंपल सा है कि आपकी एक करेक्ट कस्टमर आपसे मिलने चाहिए और वो एक करेक्ट प्लेस होना चाहिए। लेट कंसिडर कि दिल्ली में
आप किसी एक रियल एस्टेट का एग्जांपल लेते हैं, सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं कि आपका दिल्ली में क्या है, आपका चल रहा है बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और दिल्ली के किसी पर्टिकुलर एरिया में चल रहा है, आपका पर्टिकुलर एरिया में चल रहा है आपका कंस्ट्रक्शन, तो कितने किलोमीटर्स के जो रेंज के क्या बोल सकते हैं ऑडियंस होंगे, वो आपके बिजनेस से अट्रैक्ट करेंगे। मानिए एक छोटा सा आप कोई भी एरिया अपने अपने आप लोग जहां जहां भी जिस जिस सिटीज से हैं, आप उस एरिया का लोकेशन ले लो, ठीक है, वहां पे एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है किसी बिल्डर का, तो आप बताओ कि जो ऑडियंस होगी जिनको फ्लैट्स क्या बोलते हैं परचेज करने होंगे उस बिल्डिंग में, वो कितने किलोमीटर कितने रेडियस के अंदर आएंगे और उसमें इंटरेस्ट अपना शो करेंगे। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कितने किलोमीटर्स के रेडार में अपने वो बिल्डिंग में अपना इंटरेस्ट शो करेंगे। गलत सही कुछ भी आंसर दीजिए, मैम बस अराउंड दीजिए। 3 to 4 kilometers, max 5 kilometer. मैम ठीक है, 4 to 5 किलोमीटर। चलिए 4 तो एक 5 एवरेज मान लेते हैं, बिकॉज आप लोग का कॉमन ही एक तरीके से 3 to 4 या 5, ऐसे 5 हो गया। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि हम लोग क्या बात कर रहे थे कि इंडिया में होर्डिंग्स की बात कर रहे थे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मिनिमम 5 किलोमीटर की रडार में होंगे, या फिर मैक्सिमम 7 आप जा सकते हो। क्यों? क्योंकि उनको अपना ऑफिस देखना है कि उस एरिया से उनका ऑफिस कितना है, या फिर जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स की चीजें होंगी, तो जो वो होर्डिंग्स भी अपना पुट करेंगे ना, वो उतने ही रेडियस में पुट करेंगे। ऐसा नहीं है कि 5 किलोमीटर के जो रडार के जो लोग हैं वो उस बिल्डिंग या फिर उस फ्लैट से इंटरेक्ट कर रहे हैं और होर्डिंग 15 to 20 किलोमीटर के एरिया में लगी हुई है, उतना दूर लगा हुआ है, तो कोई भी 20 किलोमीटर ट्रैवल करके इधर नहीं आएगा शिफ्ट होने, अनटिल और अनलेस उसका कोई आप बोल सकते हो बेनिफिट ना मिल रहा हो उस कस्टमर को। वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग भी कुछ ऐसा ही होता है। डिजिटल मार्केटिंग करने का भी जो प्रोसीजर होता है, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, जिसमें आपका इंस्टाग्राम और आपका फेसबुक आ जाता है ज्यादातर, ठीक है, लिंक्डइन हम लोग थोड़ा सेपरेट रखते हैं, अभी सिर्फ इंस्टाग्राम एंड इस पे बात करते हैं, कि जब आप अपना कोई भी प्रमोशन करते हो, इधर इट्स पेड और इधर इट्स ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक से मतलब कि उसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते ऑर्गेनिक में, एंड पेड में आपको कुछ सर्टेन अमाउंट आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। अब तो आपको हर चीज का अब देखिए, बिजनेस इंडिया में ऐसे आ गए हैं ना कि हर एक कोई भी यूनिक नहीं रहा है, ठीक है, कोई भी यूनिक नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक बिजनेस का कॉम्पिटिशन क्या हो चुका है, इमीडिएट आ चुका है हर एक बिजनेस का, चाहे वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट का हो, क्रिएटिविटी का हो, डांस का हो, सिंगिंग का हो, बिजनेसेस का हो, और सेल्स का हो, हर का कंपटीशन आ चुका है। तो डिजिटल मार्केटिंग अब के टाइम पे कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए हो चुका है, क्योंकि अब कुछ न्यू नहीं रहा है, कंपटीशन इतना ज्यादा आ चुका है कि हर चीज की डिमांड बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है, हाई हो चुकी है। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस जो होता है, अगर आप सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पे काम करते हो ऑर्गेनिकली, तो आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अब ये कॉम्पिटिटर एनालिसिस होता क्या है, इसको हम आपको अभी प्रैक्टिकली दिखा देते हैं कि लेकिन हाँ, इन शॉर्ट में भी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, कि जब दो सेम ब्रांड्स, फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे कि ये है आपका स्ट्यू वैली है। स्ट्यू वैली क्या है? आपका एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको कोर्सेज मिलते हैं, आपको सीखने को मिलता है, मतलब आपका इन शॉर्ट एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। अगर स्ट्यू वैली को किसी से कंपेयर करना होगा, या फिर अगर स्ट्यू वैली को अपना कॉम्पिटिटर फेच आउट करना होगा, फाइंड आउट करना होगा, तो उस सिनेरियो में स्ट्यू वैली का एक तो कॉम्पिटिटर होगा, ऐसा तो है नहीं किसी बिजनेस का कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं होगा। तो मानिए अगर स्ट्यू वैली है तो कोई और होगा, ग्रेट लर्निंग होगा, यूडेमी होगा, एक्सवाइजी, कोई भी आपका एक कॉम्पिटिटर होगा। तो आपको डेली बेसिस पे उस कॉम्पिटिटर को क्या करना होता है, एनालिसिस करना होता है कि कैसा पोस्ट हो रहा है, किस तरह का पोस्ट हो रहा है, क्या वो इंटरेक्टिव है कि नहीं है। तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं आपकी क्या होती है यहाँ पे आ जाती हैं, जैसे कि एक सेकेंड, हम लोग यूडेमी को देखते हैं। लोड हो रहा है ना, जस्ट एक सेकंड मुझे दीजिए, जब तक ये लोड हो रहा है तब तक हो ही गया।
हमेशा अपने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का एक एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए ऑन सोशल मीडिया। क्यों? क्योंकि उसका एक रीजन होता है किस टाइम पे आपका कस्टमर आपसे इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जितनी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस इंपॉर्टेंट होती है। सेल्फ एनालिसिस में क्या होता है कि अगर मानिए आप एक दिन में 3 सर्टेन टाइम पे आप एक सैंपल कर रहे, एक प्रैक्टिकल कर रहे हो, ठीक है, वो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक दिन में आपको 3 डिफरेंट टाइम को आपको सेलेक्ट करना होगा। लाइक मॉर्निंग का आपने 10 ले लिया, आफ्टरनून का 2 ले लिया, 3 भी नहीं 2 ले लिया, 2 PM ले लिया आपने, एंड इवनिंग का आफ्टर 7 है तो आपने 8 PM ले लिया। ठीक है, नाइट का आपका 8 PM। तो ये चीज आपको समझा रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी कुछ इस तरीके होती है जैसे सेल्फ होती है। ये सेल्फ वाली है जो हम आपको बता रहे हैं। मानिए आपको एक पोस्ट करना है, आपने 3 पोस्ट क्रिएट किए एक दिन के लिए। ठीक है, एक आपने मॉर्निंग 10 AM पे किया, आफ्टरनून 2 PM एंड नाइट आफ्टर ऑफिस कंप्लीट होने के बाद एक कॉमन टाइम लिया 8 PM का। आपको ये देखना होगा कि 3 डिफरेंट पोस्ट, 3 डिफरेंट कंटेंट, 3 डिफरेंट इमेजेस एंड सब कुछ डिफरेंट और 3 डिफरेंट टाइम। आपका कस्टमर किस दिन पे, मतलब आपके वीक्स में 7 डेज होते हैं, तो किस डे पे आपसे किस टाइम पे ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा है। क्या वो मॉर्निंग में कर रहा है, आफ्टरनून में कर रहा है कि नाइट पे कर रहा है। तो वो हर दिन का आपका जो चार्ट होता है ना, जो आपका जो ग्राफ होता है ना, वो सब डिफरेंट होता है। तो ट्राई ये होता है कि हम लोग लमसम जब वो डे आए तो हम लोग उसी के नियर बाय क्या करें, उस पोस्ट को अपलोड करें वहां पे। जैसे कि अब यूडेमी का देखते हैं। अब देखिए इनका लास्ट पोस्ट जो हुआ पड़ा है 2 सितंबर 1:39, मतलब नाइट में। ठीक है, मतलब आप एक तरह से मॉर्निंग बोल सकते हो, 1:39 उस पे हुआ पड़ा है, आपका AM पे हुआ पड़ा है। तो 2 सितंबर का, ठीक है, जिसमें 10 आवर्स हो चुके हैं। किस तरह का पोस्ट हुआ है इनका। दूसरी चीज, लाइक्स कितने आ रहे हैं, कमेंट्स कितने आ रहे हैं। ठीक, सेकेंड पोस्ट 2 डेज अगो मतलब आपका 31 अक्टूबर, बिकॉज संडे ऑफ रहता है तो कोई इतना नहीं करता। 31 आपका वो हो जाता है ये पोस्ट आपका सैटरडे का। पोस्ट कैसा है और आपका कंटेंट कैसा है, कैसे लोग इंटरेक्ट कर रहे, कितने लाइक्स आए। तो ये कॉम्पिटिटिव एनालिसिस होता है। सबसे ज्यादा ध्यान आपका किस पे दिया जाता है, आपको देना पड़ता है आपके डेज पे। ठीक है, कितने दिन का गैप आ रहा है, कंटेंट कैसा आप पुट कर रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज, जब आप इमेज लगाते हो तो वो ओरिजिनल होनी चाहिए, डाउनलोडेड कभी भी नहीं होनी चाहिए। कैनवा का यूज करिए, सबसे इजीएस्ट प्लेटफॉर्म है कैनवा के लिए। कैनवा नहीं है, आप अपने लाइव सेशंस का यूज करो, चाहे वो आपका ऑनलाइन हो चाहे वो आपका ऑफलाइन हो। आप अपने एम्प्लॉयज का पुट करो, लेकिन पुट करो और ओरिजिनल होना चाहिए। दूसरी चीज, जब आप सोशल मीडिया पे कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हो ना, तो उसमें भी एक डिफरेंस आता है। अब एक और चीज अगर आपने नोटिस किया होगा, सैटरडे संडे 95% हर कंपनीज का हॉलीडे रहता है। ठीक है, स्टूडेंट्स का तो चलिए रहता ही है, बट कंपनीज का भी 95%, कुछ कंपनीज है अच्छी वाली जो सैटरडे संडे ऑफ करती है। तो अब ये देखो, आप सैटरडे को अगर यहाँ पे था तो आपका देखिए 81 लाइक्स आपको आए थे, बिकॉज आपका एक लेजर टाइम होता है, फ्री टाइम होता है उस टाइम पे। अब यही चीज आपने आज मंडे को की है, अभी टाइम आपका ऑलमोस्ट कितना हो रहा है, 12:30 समथिंग होने जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखो 25। तो एक टाइम गैप, जो टाइम गैप है ना आपका, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि खाली टाइम पे लोग अपने आप को एंगेज करने के लिए या फिर सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करने के लिए बहुत लोग आते हैं। बट जब आपका एक वर्किंग आवर्स होता है तो उसमें आपको डिफरेंस दिख ही जाता है। इवन तो इनके टाइम में भी डिफरेंस है, ये रात के आपके 1:39 AM पे हुए हैं अपलोड, और यहाँ पे आपका कब हुआ है, 2 डेज बैक में अगर देखा जाए तो 2:36 पे हुआ है। ठीक है, आफ्टरनून 2:36। तो डिफरेंस आता है इन सब जगहों पे। ये सारी चीजों को आपको क्या करना होता है, ध्यान से देखना पड़ता है, ध्यान से आपको एनालाइज करना पड़ता है, और फिर आपका अगर बिजनेस है तो उस पे आपको क्या करना होता है, पोस्ट करना होता है। अब दूसरी चीज, जैसे हैशटैग का एक ट्रेंड था,
ठीक है, हैशटैग का भी एक ट्रेंड चल रहा था कि जब न्यू न्यू था कि भाई हैशटैग लगाओ, जितना हैशटैग लगाओगे पोस्ट रीच उतनी होती है, इंगेजमेंट उतना आपको मिलता है, इंटरेक्शन उतना मिलता है। बट आज के टाइम पे हैशटैग जीरो हो चुका है। हैशटैग बस यूज इसलिए होता है जस्ट फॉर आपका पोस्ट अट्रैक्टिव दिखने के लिए, वरना आज के टाइम पे हैशटैग का इतना कोई इंपॉर्टेंट रोल बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम पे प्योरिटी ऑफ कंटेंट, ओरिजिनलिटी इन योर पिक्चर, ठीक है, और आप जो बोल रहे हो और अगर आप सर्विस दे रहे हो, इवन प्रोडक्ट हो चाहे वो आपकी कोई सर्विस हो, वो उसमें ओरिजिनलिटी, उसमें वैल्यू होनी चाहिए, तो वो आपका आज के टाइम पे ज्यादा बिजनेस चलता है। हैशटैग से अब नहीं चलता, बिकॉज आज के टाइम पे आप कस्टमर्स को आप बुद्धू नहीं बना सकते हो। कस्टमर अब धीरे 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 हर चीज से इतना इंटेलिजेंट हो चुका है कि भाई इन सबसे मतलब नहीं है, अपने को जो प्योरिटी देगा वही हमारा बेस्ट क्या है, ब्रांड है। तो ये आपका होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, चाहे ये आपका इंस्टाग्राम हो चाहे आपका ये फेसबुक हो। इतने में अगर कोई डाउट है या कुछ है, आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, कुछ भी अगर ऐसा है तो। नो मैम, कंटिन्यू अभी करें। तक तो ठीक है। यस मैम, अभी तक तो ठीक है। हाँ, अब देखिए। 1 सेकंड हाँ बोलिए। मैम, आप जो बोले पोस्ट करने के जो कितना बजे पोस्ट कर रहे, वो हाँ। कितना फॉलोअर्स आ रहे, उसका एनालाइज करने का कुछ टूल है कि ऐसे ही हमको फिजिकली देख के करना पड़ेगा? नहीं, फिजिकली ही करिए आप, ज्यादा बेटर है। टूल्स नहीं होते फॉलोवर्स और उनके, आप इनसाइट्स देख सकते हो, इनसाइट देख सकते हो। इनसाइट में क्या होता है, जैसे कि ये तो आप सीखोगे, बट ठीक है हम आपको यहाँ पे एक बार बताते हैं, एक सेकेंड। मैम ये जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि लाइक वी हाँ हैव टू सी द पोस्ट एंड कंपनीज के सारे, right? जी। तो इसमें जैसे कि लाइक जस्ट अ सेकंड, तो हेलो, हाँ हाँ बोलिए ना। हाँ, तो इसमें मैम जैसे कि हम जैसे ज्वाइन करते हैं एज ए डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और इन एनी कंपनी, तो हम्म। ये सब कोई स्पेसिफिक डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आती है या कोई लाइक कोई फील्ड, नहीं, इसका ये कोई डोमेन डिजिटल है? मार्केटिंग में ही आती है। जैसे कि अभी शायद निखिल थे, निखिल से अगर आप बात करोगे तो वो उनका कैसा था कि हाँ, हर एक फील्ड, हर एक पोजीशन का अलग अलग अपना काम होता है। लेट करेक्ट। कंसिडर अगर आप फ्रेशर के लिए जाते हो या फिर इंटर्न्स के लिए जाते हो, इंटर्न्स हम्म। फ्रेशर सेम पोजीशन के लिए, आपको हाँ, पोजीशन अगर डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की मिलती है या इंटर्न की मिलती है, ठीक है, तो या उस सिनेरियो में अभी सोशल मीडिया की बात करें, सिर्फ सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव है, सोशल मीडिया इंटर्न, लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम और इन सब के हैंडल। या वो सोशल मीडिया उस मैनेजर, यस हाँ, यस। उस हाँ सिनेरियो में अगर आप इंटर्न और एग्जीक्यूटिव फ्रेशर लेवल, एकदम एंट्री लेवल के उस पे हाँ, जाते एंट्री हो, लेवल। हाँ, तो या वहां पे आपको ज्यादातर बहुत हेक्टिक काम नहीं मिलता। आपको डेली का पोस्ट मानिए 30 डेज का ना, डिफरेंट डिफरेंट एक सोशल मीडिया कैलेंडर होता है, हर कंपनी का या अलग हाँ अलग हाँ, होता है। तो आपको करेक्ट उसके करेक्ट। अकॉर्डिंग हर दिन आपको वैसा पोस्ट करना होता है। पोस्ट सेम, तो क्रिएट करना होता है, हाँ, या पोस्ट क्रिएशन हाँ, करना होता है। आप उसमें कुछ टूल्स का यूज कर सकते हो जिसमें कि आप टाइम सेट कर सकते हो। अगर मानिए आप उस सर्टेन टाइम पे अगर आप नहीं हो अवेलेबल, तो आप वहां पे हाँ, टाइम फिक्स कर सकते हो, ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाता तो है। वो पोस्ट हो जाता है। हाँ हाँ, जी लाइक हाँ। आई हैव बीन इनटू द कंपनी, वहाँ पे आई वाज एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, तो हाँ वहाँ पे वी वर डीलिंग विद सोशल मीडिया टीम और वो, बट एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग लाइक इट्स लाइक व्हाट इट इज, आई वांट टू लर्न तो हाँ, या नहीं, वही मैं पूछ रही एक्चुअल थी कि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है, हाँ ये हाँ एंट्री लेवल आपका ये आ गया, जब आप इससे एक लेवल अप जाते हो तो वहां पे हाँ आपका हाँ, आ जाता है कैंपेन्स क्रिएट करना, चाहे वो सोशल करेक्ट। मीडिया हो, चाहे आपका गूगल एड्स हाँ या वही, कोई भी हो। वो हाँ गूगल एड्स, कैंपेन, जी हाँ। ईमेल मार्केटिंग, वो हाँ, सब ना। वो एक ओके, लेवल अप हो जाता है आपका। फिर उसी लेवल पे जो आप एक और दो लेवल अप जाते हो, तो उसी लेवल में आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कैंपेन करेक्ट, रनिंग एसईओ। आ जाता है। हाँ, वो पूरा हाँ, एक आपका एक पैरेलल प्लेटफॉर्म पे वो सुनाइए। चलता रहता है। फिर वो आप पे डिपेंडेंसी रखता है कि किस हम्म। पर्टिकुलर फील्ड में आपको जाना है। मानिए अगर आपका इंटरेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग में है, तो आप उसी हाँ में कैंपेन करो। अगर आपका सर्च इंजन मार्केटिंग लाइक पीपीसी में है, तो आप उसमें हाँ जा हाँ सकते हो। तो वो वैसा रहता है। और एंट्री लेवल अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की मिलती है, मतलब जैसे हाँ सोशल मीडिया का हो गया, अगर आपको हाँ, एग्जीक्यूटिव एंट्री लेवल मिलता है, तो उसमें आपको जितनी भी चीजें होती, कीवर्ड रिसर्च, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, कीवर्ड रिसर्च होता है, एससी, कंटेंट हाँ क्रिएशन। जी हाँ, या कंटेंट क्रिएशन, एसईओ का बेसिक आपका ऑन पेज ऑफ पेज का होता है, या बैकलिंक्स क्रिएट करना, बैकलिंक, हाँ हाँ, हाँ, वो सारी करेक्ट चीजें आपकी करेक्ट। एंट्री लेवल पे डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में आ और जाती है। हाँ हाँ,
ओके मैम, कैंपेन्स मतलब कैसे वो वर्क करते हैं? व्हाट आर हाँ, कैंपेन? कैंपेन का भी हम आपको एक एग्जांपल बता देते हैं। यहाँ पे वर्क करना हम लोग साथ में सीखेंगे, लेकिन कैंपेन दिखते कैसे हैं, वर्क कैसा अपना होता है, वो हम आपको एक ओके, आइडिया यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ठीक है। जी। अभी किन्हीं ने पूछा था ना फॉलोवर्स का, और कैसे कर सकते हैं, मुझे हम यस नाम मैम, नहीं देखे थे आपका, आई एम सो सॉरी। बट हाँ, यस मैम, यहाँ पे जैसे कि देखिए, जब आप अपना कंपनी पेज बनाते हैं ना, तो उसमें इनसाइट्स दिखती है। इनसाइट्स का मतलब ये होता है कि कितने आपके फॉलोवर्स, या फिर जो फॉलोवर्स नहीं भी हैं आपके, कितने लोग आपके उस पर्टिकुलर पेज पे आ रहे हैं और उस चीज को क्या बोलते हैं, शो कर रहे हैं या देख रहे हैं। जैसे कि हर एक पोस्ट का अपना अपना होता है। ये मेरा सैंपल है, ये कोई वर्किंग नहीं है, ये सैंपल है। तो यहाँ पे जैसे देखिए, मैंने कंटेंट लिखा, यूआरएल डाला, हैशटैग का किया, यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर पोस्ट का इनसाइट देख सकते हो। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे, कितने इंप्रेशन आए, इंप्रेशन, रीच एंड एंगेजमेंट सब डिफरेंट होते हैं, सबके सब डिफरेंट होते हैं। इसके बारे में भी हम लोग डीप बात करेंगे, लेकिन हाँ, ये डिफरेंट होते हैं, इंप्रेशन, रीच एंड एंगेजमेंट। तो ये आप पर्टिकुलर पोस्ट का देख सकते हो। अब एक चीज और आती है, बहुत लोग का ये रहता है कि पोस्ट को उन मतलब बहुत अब तो बहुत लोग को पता है, बट स्टिल 10% अभी भी ऐसे अपने लोग होते हैं जिनको लगता है कि जो एक्चुअल कैंपेन होता है वो आपका ये बूस्ट पोस्ट होता है। ठीक है, बट ये गलत है। ये आपका एक्चुअल कैंपेन रन नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। ये आपको इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा, ये आपको लिंक्डइन पे भी मिलेगा, सेम चीज आपको फेसबुक पे भी मिल रही है। बट एक्चुअल बूस्ट पोस्ट आपका कैंपेन नहीं होता है। ये जो बूस्ट पोस्ट होता है, ये पर्टिकुलर आपके पोस्ट को रन करने के लिए होता है। जैसे कि ये एक सेकेंड, ये मेरा एक एंटायर कंप्लीट पोस्ट है। ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा एक मेरा कंप्लीट पोस्ट है, ये वाला। तो अगर हम बूस्ट पोस्ट का यूज करते हैं, तो वो सिर्फ मेरे इसी पर्टिकुलर पोस्ट को क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट लेकर आएगा। वो मेरे पेज पे एंगेजमेंट कभी भी नहीं लेकर आएगा, ये याद रखिएगा। तो बूस्ट पोस्ट कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप कभी फ्रीलांसिंग करो या फिर आप कभी क्लाइंट हैंडलिंग भी करो, तो बहुत क्लाइंट्स भी आपको ऐसे मिलते हैं जो बूस्ट पोस्ट के लिए फोर्स करते हैं। अगर वो फोर्स करे, आप करो, क्योंकि उनका पैसा है, उसमें आग भी लगे, उसमें आपका कुछ नहीं जा रहा। लेकिन अगर आपसे वो सजेशन मांगे, तो बूस्ट पोस्ट कभी मत करिएगा उस चीज को लेकर। कैंपेन अपना डिफरेंट ही होता है। अब बात आती है फॉलोवर्स की, जो आप कह रहे थे, उसके लिए यहाँ पे अगर आप इनसाइट्स देखोगे, ये पूरे आपके पेज के इनसाइट्स होते हैं। पूरा का पूरा आपको पेज इनसाइट्स यहाँ पे मिलेगा, ए टू जेड, जितना भी, कितने ऑडियंस आए हैं, या फिर कितना भी आपका है ना एंगेजमेंट, फॉलोवर्स, ये सारा। लेकिन हाँ, अगर आप ये बोलो कोई ऐसा टूल है जो मेरे फॉलोवर्स को कर दे, नहीं, ऐसा कोई टूल नहीं है जो आपके फॉलोवर्स को वो कर सकता है। आप इनसाइट्स देख सकते हो, कितने आए हैं, कितने नहीं आए। आप अपने उस पर्टिकुलर पेज का प्रमोशन कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू, पर्सनल फ्रेंड्स को भेज के, मैसेज के थ्रू, आप इस तरह से कर सकते हो। बट ऐसा कुछ नहीं कि आप फॉलोवर्स अपने वैसे बढ़ा लो। ठीक है, ओके अब था मैम, आपका। हाँ, बोलिए। मैम नेहा है मेरा नाम। मैम, जैसे आपने बोला, एक्चुअली आई एम एस्ट्रोलॉजर, तो हाँ। मेरे को अपना वर्क ग्रो करना है, तो इसलिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन किया है। तो आई एम आस्किंग कि हम ऑर्गेनिक तरीके से भी कर सकते हैं ना, या हाँ, हर चीज पेड़ से ही होगी? नहीं, जैसे आपका एस्ट्रोलॉजर, आपका जो फील्ड है एस्ट्रोलॉजर का है ना, एक और मेरे प्रीवियस स्टूडेंट रह चुके हैं, मुझे उनका पेज का नाम अगर याद आएगा आपको बता देंगे। वो उनका भी था, वो सिर्फ ऑर्गेनिक करते थे, सिर्फ ऑर्गेनिक। वो एक्चुअली इंस्टाग्राम पे भी ऑर्गेनिक, फेसबुक पे भी। बट हाँ, वो जो कस्टमर्स होते हैं ना, अब वो आप लोग को ज्यादा एज का और आइडिया रहता है कि इनको कैसी रिक्वायरमेंट है, तो वो एक मैसेज अपना बिल्डअप करके रखे रहते थे, एक ऑफिशियल प्रोफेशनल मैसेज। तो वो आगे कन्वे कर देते थे कि अगर किसी को इंटरेस्ट ओके होगा तो ओके। वो रिवर्ट बैक करेगा, अनटिल अनलेस, तो वो फिर आगे अपने उसी फ्लो में जाते थे। हाँ, मुझे मतलब इसी तरीके का करना, ऑर्गेनिक में मतलब जहाँ मतलब थोड़ा बहुत लगे वो अलग बात है, मतलब हो जाता है हाँ, ना इससे ऐसे? नहीं नहीं, हो जाता है। और हाँ, उनका वेबसाइट भी था, मतलब क्योंकि आप लोग का वेबसाइट होना इट्स मैंडेटरी, क्योंकि वो उसके लिए मतलब कहीं पे पोस्ट करना है तो एक ओरिजिनलिटी, ऑफिशियलिटी इस चीज हाँ के जी लिए। हाँ जी। जी हाँ, तो वो उनका वैसे था
क्योंकि उनका सिंपली था, मुझे पेज का एस्ट्रोलॉजर ही कुछ ऐसे करके था, अगर मुझे मिलेगा तो हम जरूर आपसे वो लिंक शेयर करेंगे। तो उनका ऐसे ही था कि वो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे अपना अकाउंट बनाए थे, और फेसबुक पे डेली का उनका कुछ ना कुछ तो पोस्ट रहता ही था, कुछ ना कुछ हाँ डेली जी का हाँ जी। पोस्ट था उनको लाइक्स, और उससे तो उनको ये था कि डेली पोस्ट करो, वो कंसिस्टेंसी उनको रखनी थी। और एक वेबसाइट अपनी, बस थोड़ी सी उनकी वेबसाइट बहुत ऐसी थी कि वो एक होता है ना अट्रैक्टिव नहीं थी, कि जाते ही मन था, तो उन्होंने वेबसाइट अपनी पूरी की पूरी चेंज की है, मे बी शायद उन्होंने नेम भी चेंज किया हो, तो वो वेबसाइट उन्होंने बिल्डअप करके रखा था। बाकी आप लोग के लिए ऐड का नहीं है, लेकिन हाँ कभी आपको लगे कि अब बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो जरूर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड कर सकते हैं। उसके सिवा हम ये नहीं बोलेंगे आप गूगल पे ऐड रन करो या फिर सर्च, लेकिन आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप सैंपल के लिए ऐड तब रन करिए जब आपको अपना प्रॉफिट दिखना ऑर्गेनिकली स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इस ठीक पे है। आप सैंपल के लिए 100-200 रुपीज से भी 1 डे का कैंपेन आप रन कर सकते हो जस्ट सैंपल के लिए। हाँ अब बात आती है उस पे। मैम फिर वेबसाइट तो हम बना लेंगे ना, जैसे आप कोर्स में स्टेप बाय स्टेप लेके जाएंगे तो हम हाँ अपनी वेबसाइट तो बिल्ड कर ही लेंगे खुद से। जी हाँ, कर सकती है। अभी जैसे हम आपको स्टेप बाय स्टेप अभी सबसे सोशल मीडिया से स्टार्ट करते रहेंगे, और फिर जब वर्डप्रेस पे आएंगे तो आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। बस हाँ, वेबसाइट से पहले इमेजेस हो गया, कंटेंट हो गया, ये चीज आपको पहले रखनी पड़ेगी उस जगह पे। ठीक है ठीक है, वो तो हो जाएगा हाँ मैम, आप रहोगे हो जाएगा। ठीक है। वो तो वही ओके। सपोर्ट चाहिए ना मुझे, एक्चुअली इस चीज के लिए सपोर्ट चाहिए, तभी अरे मैंने नहीं ज्वाइन किया है। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी अ, मैं अपनी तरफ से करूंगी, हार्डवर्क के बिना तो देखो कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरा मेन एम अब ये है कि प्लेटफॉर्म सेट के अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी हेल्प चाहिए होगा किसी को भी तो मतलब है, क्लास में भी है, बाहर भी है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अ, अच्छा ओके। अब देखिए अभी इन्होंने पूछा था कैंपेन का, तो अपने कैंपेन्स दिखते कैसे हैं, तो बेसिकली चाहे वो आपका सर्च इंजन मार्केटिंग हो, मतलब गूगल एड्स हो, चाहे आपका वो लिंक्डइन पे हो, या फिर आपका इंस्टाग्राम या फेसबुक, जहां पे भी आप कैंपेन्स अपने रन करते हो, तो आपके कैंपेन्स कुछ ऐसे ही दिखते हैं। ये स्पॉन्सर्ड लिखे कि कहीं पे प्रमोटेड, जैसे लिंक्डइन में प्रमोशन सॉरी प्रमोटेड लिखा रहता है, वैसे यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा रहता है। जैसे एक आपका एड ये रन हो गया, जो ये पेड वाले हैं, पेड वाले जो एड्स आपके होते हैं वो ये पेड वाले एड्स हैं। और भी आपको एड्स दिखेंगे, ये देखिए यूडेमी का, ये आपका पेड एड है। तो आपके पेड एड ऐसा तो जो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हाँ हम लोग, हाँ बोलिए। हाँ मैम, जो वो जो हम कुछ भी लाइक ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कुछ भी कुछ सर्च करते हैं, तो हाँ उसमें मिडिल में जैसे कोई इंस्टीट्यूट की कोई एड आ गई, या कोई जैसे कि आप बता रहे स्पॉन्सर है या कैंपेन की साइड में भी बता रहे क्लोथिंग का, जी तो ये सारे कैंपेन्स हैं जो वो कंपनी रन करते हैं। जी हाँ जी हाँ। अच्छा, ऐसे जैसे रहता कि है, ये जो ओके। एड रन हुआ है, ये आपका आचो.com करके ये पर्टिकुलर हाँ, वो किया है, ये आपका वेबसाइट, इदाहो हाँ। करके है वेबसाइट की है, ये आपका यूडेमी। तो ये हर कंपनी का अपना एक मार्केटिंग का मैनेजर होता है वे या होता है, स्पेशलिस्ट हाँ। होता है, वो ये मार्केटिंग, हाँ। कैंपेन को रन करता है, अपना कैंपेन। ओके, हर तो कंपनी का ये वो अलग लोग अलग। डिसाइड करते हैं किसी भी लाइक वेबसाइट पे हमको पोस्ट करना है, या कैसे वर्क करता नहीं है नहीं फिर नहीं ये? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं कि आप मिंत्रा पे गए, आपको एक टॉप बहुत प्रिटी लगा, तो हाँ, आप क्या करते हो, उसको या तो विश लिस्ट में रखते हो कि प्राइस थोड़ा सा डाउन हो जाए, या तो आप उसको हाँ, परचेज करते हो अगर आपके बजट में आता है तो देखिए करेक्ट। बात क्या होती है कि अगर आपने ये ऑब्जर्व किया हो कि जब आप कोई टॉप को विश लिस्ट या ऐड टू कार्ट में पुट करते हो विदाउट परचेजिंग, ठीक है, हाँ, तो हाँ, हाँ। वही प्रोडक्ट आपको आपके डिफरेंट सोशल मीडियाज पे भी दिखने वेबसाइट, लगता है। हाँ, दिखता है, हाँ, 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 दिखता है, उसका करेक्ट। रीजन क्या होता है कि आपको उस पर्टिकुलर टॉप की क्या है रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको वो प्रिटी हाँ, लगा, दैट्स वाई आपने या तो उसको ऐड टू कार्ट में रखा है विदाउट परचेज, या तो विश लिस्ट में रखा है। विश तो लिस्ट फिर में, वो आपको हाँ। एड्स दिखने स्टार्ट होता है। एड कैसे दिखते हैं कि अभी थोड़ा सा हम लोग डीप इन डेप्थ जा रहे हैं, अगर समझ में तो बहुत अच्छी नहीं आए तो कोई डरिएगा नहीं, हम लोग टॉपिक में समझेंगे, लेकिन ट्राई करिएगा। तो अब वो ओके, एड दिखता कैसे अपने को, हर एक प्लेटफॉर्म का अपना एक रीमार्केटिंग कोड होता है, ठीक है। जैसे रीमार्केटिंग, रीमार्केटिंग कोड होता है, जैसे कि ओके। फेसबुक और इंस्टाग्राम आपका मेटा में आते हैं तो इनका एक ही रीमार्केटिंग कोड है, मतलब दोनों का अलग ओके। अलग नहीं है। तो हर एक का, मानिए आपका फेसबुक अकाउंट डिफरेंट है, निखिल का डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है, ठीक है।
तो मेरे फेसबुक का रीमार्केटिंग कोड डिफरेंट होगा, आपके फेसबुक का डिफरेंट होगा, निखिल के फेसबुक का डिफरेंट होगा रीमार्केटिंग कोड। तो मानिए Okay. आप अगर मिंत्रा के लिए एड रन कर रहे हो, तो मिंत्रा का आपका एक हाँ. अकाउंट बना होगा, उसका पेज बना होगा, तो मिंत्रा का एक Okay. अलग रीमार्केटिंग कोड, वो रीमार्केटिंग कोड इन लोग क्या करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए अपनी वेबसाइट में पुट करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो भी एक्टिविटी कस्टमर्स कर रहे होते हैं उनको डेटा वहां मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एड्स जो होती हैं वो इमीडिएटली दिखना स्टार्ट हो जाती है आप लोगों को। और वो Okay. एड पहले से भी बना के उन लोग रखे रहते हैं, ऐसा नहीं है, वो पहले से भी बना के रखे रहते हैं, लेकिन जब आप उस प्रोडक्ट को पर्सनली चूज कर लेते हो ना, तो आप उनके रीमार्केटिंग कस्टमर में आ जाते हो। अब एक और चीज भी होती है इसमें, कोई भी एड आपको तब तक दिखाई देगा जब तक वो एडवर्टाइजर चाहेगा। जैसे कि आपको जो टॉप अच्छा लगा, आपको वो एडवर्टाइजर चाहता है वो टॉप आपको सिर्फ 7 डेज तक दिखाई दे, ठीक है। वो सिर्फ 7 डेज तक, ये कैसे दिखाई देगा उसको रिटेंशन में लाते, लेकिन वो भी हम लोग बात करेंगे। तो वो सिर्फ 7 डेज तक आपको दिखाई देगा। आफ्टर 7 डेज क्या हो जाएगा, जब तक आप वापस से उस टॉप पे नहीं जाओगे वो एड आपको तब तक नहीं दिखाई देगा। Okay. So उसे ये तो कहते हैं strategy होता रीमार्केटिंग। है. हाँ, वो Okay. रीमार्केटिंग, क्योंकि 7 डेज एक डिजिटल मार्केटिंग में एक ऐसा आप बोल सकते हो कॉन्सेप्ट है कि 7 डेज तक एक ऐसा टारगेटिंग होता है कि 7 डेज के अंदर किसी को परचेज करना होगा तो वो करेगा, नहीं करना होगा तो वो नहीं करेगा, चाहे आप उसको 10 दिन ही क्यों ना दिखा दो आगे बढ़ा के। तो वो 7 डेज एक बहुत बेसिक उन्होंने मार्केटिंग करके अपनी रखी हुई है हर बिजनेस के लिए, कि इसके बाद नहीं दिखाना है जब तक दोबारा कस्टमर खुद से वहां ना जाए, Okay. तो वो वैसे तो हो जाता basically है। हाँ ये स्ट्रेटेजी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार होता है कि जैसे हमने कुछ वॉच सर्च की, हाँ, तो एक वेबसाइट में वॉच सर्च की, नाउ इफ आई ओपन इंस्टाग्राम और एनी अदर वेबसाइट, वहां पे भी वो नीचे वॉच का भी वो इमीडिएटली दिख पूरा, जाएगा। हाँ इमीडिएटली उसका पूरी ऐड जाती रहती है कि कोई भी डिफरेंट कंपनी की। बट आई हाँ, थिंक वो कैच कर लेता है। आई थिंक हाँ, क्या प्रोसेस है, दूसरी चीज यही और होता भी है है। इसका कि अब देखिए, अगर हम लोग छोटी कंपनीज को ना देखें तो मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, amazon और भी जो भी आपकी कंपनीज है वो बहुत बिग ब्रांड्स हो चुकी हैं, ठीक है। करेक्ट। उनको अब इतना नहीं पता, उनको बस अपने रेवेन्यू से मतलब है कि मेरा इतना आना चाहिए पैसा, इससे ज्यादा उनको किसी से ओके। मतलब नहीं है। तो होता हाँ. क्या, उन लोग हर एक सिंगल प्रोडक्ट से क्या करते हैं ना, मार्केटिंग का एड बना के रखे रहते हो, बना के ऐसे रखे ओके. रहते हैं कि भाई इसको रन नहीं करेंगे, बना के रखे हाँ. रहेंगे। जब मुझे कुछ ऐसा डेटा मिला, वो सीधे वहां पे एक बटन होता है ऑन एंड ऑफ का, आप उसको ऑन कर दो, वो रन हो जाएगा अपना पैसा डिडक्ट करके। करेक्ट. तो वो ओके. वैसे उन लोग रन करते हैं। तो हमको इसीलिए वो एड्स दिखते हैं जी कि हाँ, कुछ हम मतलब वो ऐसा सिमिलर नहीं है एड्स. कि आप वहां पे बैठ कर हाँ. अगर वो बनाएंगे तो उनको 30 मिनट्स तो ऐसे ही लग जाएंगे, तो वो पहले से ही बना के, क्योंकि देखिए ये सब शॉपिंग ऐसे है कि अब इसमें इनको एज और जेंडर इसकी कोई क्या बोलते हैं रिफाइनिंग नहीं करनी है, बिकॉज अब मालूम है कि अब तो 15 ईयर से भी स्टार्ट हो जाता है लोग, मतलब अब बच्चों को समझ में आ गई भाई शॉपिंग वॉपिंग का क्या फंडा है, हाँ. और हाँ. मोर देन 40 प्लस वालों को भी समझ में आ चुका है। तो अब हाँ. उनको करेक्ट. ना अपने ऑडियंस को सेट करना है, ना उनको कोई एज सेट करना है, और ना उनको कोई सिटी सेट करनी, बिकॉज ये ऑल ओवर इंडिया में वर्ल्ड वाइड मतलब चल रहा है। तो हाँ. अब उनको सिर्फ क्रिएट करके रखना है एंड देन उसको शूट कर देना है, तो इसलिए वो इमीडिएट लग जाता है, आप मतलब करेक्ट. ओके. तो इमीडिएट वो दिख पहले जाता से ही है। बना के रखना होता है। तो मार्केटिंग मैनेजर का यही वर्क रहता है जी हाँ। कि लाइक टू वर्क ऑन दीज एड्स, कैंपेन्स, वो हाँ, एड्स अच्छा फोकस करना. हाँ, ओके. एक ओके. चीज और भी होती है इसमें कि जरूरी नहीं है कि हर कैंपेन, मतलब अगर ये मिंत्रा और बिग मतलब कंपनीज को हटा दे, हम एक हाँ. मीडियम कंपनी को ले, तो एक चीज और भी होती है कि जरूरी नहीं कि हर कैंपेन आपका सक्सेसफुल वर्क करे, अगर आप कितना भी अच्छा ओके. मार्केटिंग कर लो, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो उसमें भी ना बहुत सारे आपके टीम मेंबर्स होते हैं जिनमें आपको कुछ ना कुछ क्या कर चेंजेस करने थे, मे बी शायद ऑडियंस में आप चेंज करो, मे बी हाँ. बजट में, सिटीज में। तो जरूरी है 100% श्योरिटी कभी, बिकॉज सी देखिए एक ही बार में बहुत सारे कैंपेन्स रन होते हैं, करेक्ट. ठीक है। हाँ. कौन सा कैंपेन किस पे ज्यादा इंटरेक्शन आ जाए, वो वाली चीज है। दूसरी चीज ये भी है कि फ्लिपकार्ट कह रहे सॉरी, फेसबुक का भी एक एल्गोरिदम चलता रहता है। तो फेसबुक ओके. मुझे इसके एल्गोरिदम का नाम नहीं याद है, लेकिन हाँ इसका भी कोई एक एल्गोरिदम चलता है। तो उस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जिस कैंपेन पे ज्यादा लोग इंटरेक्ट करेंगे, फेसबुक उसको हायर प्रायोरिटी पे रख देता है कि भाई ओह. इसको तो ओके. प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो इस वजह से कभी कभार ये 60-40 या 70-30 का रेशियो होता है, वैसे तो इतना भी नहीं होता, लेकिन हाँ
कभी कभार आप कितना भी अच्छा कैंपेन रन कर लो, कभी कभार आपको नहीं मिल पाता उतना जो आप जितना उम्मीद लगा के स्पेंड रख करते हो, कैंपेन ओके। से, एंड वैसा। एवरी कैंपेन पे वी हैव टू स्पेंड ना समथिंग, लाइक हाँ, वो पेड होता है। एवरी सिंगल हाँ, कैंपेन पे आपको करना पड़ता है। तो बहुत ओके, सारे तब अब कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो बल्क में अपना अकाउंट में, फेसबुक अकाउंट में ही क्या करती है, 50,000 या 30,000 कुछ जितना भी उनका बजट है वो पुट करके बजट, रख हाँ, देती है कि भाई इतने में हमको 1 मंथ का कैंपेन रन करना है। अगर ये ओवर हो ओके, गया फिर आप 2 या 3 डेज का पॉज लो, फिर आप हाँ, रिफिल करो एंड देन रन करो कैंपेन को। ओ, ओके, तो ओके, ये ऐसे है आपका। ऐसे रहता है। जी, ठीक है, ओके, थैंक यू। वेलकम। अब देखिए हम लोग कहाँ पे थे, ये देखिए बहुत बेसिक सा है, मे बी आप लोग को ही पता है, लेकिन हाँ मैंने एक छोटा सा चार्ट यहाँ पे बना के रखा है कि आपका मार्केटिंग क्या होता है। 2 तरह के आपके मार्केटिंग होते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा इसको हम लार्ज कर देते हैं। हाँ, ठीक। अब देखिए मार्केटिंग क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। अगर कोई एंट्री लेवल पे जा रहा होता है, कोई कॉलेज स्टूडेंट है या इस मतलब वैसे है, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर बहुत आप स्टार्टअप कंपनीज में जाते हो ना, तो ये कुछ इनके बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। अभी के टाइम पे मे भी शायद चेंज हुए हो, लेकिन हाँ ये कुछ है बेसिक क्वेश्चंस कि कितने टाइप्स के आपके मार्केटिंग होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, ट्रेडिशनल एंड डिजिटल में। डिजिटल आपका ऑनलाइन, ट्रेडिशनल आपका जिसमें भी आप पैम्फलेट्स एंड होर्डिंग्स ये सब जितने आप करते हो, ये आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो कि ओल्ड मार्केटिंग का पार्ट है। बट स्टिल कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे, या फिर कुछ कुछ आप बोल सकते हो ओल्ड सिटीज या फिर छोटी छोटी जगह ऐसी जहाँ पे अभी भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग चलते हैं, उनके लिए वही बहुत अच्छी चीज है। लेकिन हाँ अभी के टाइम पे आपका डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा है। अब अगर बात करें डिजिटल मार्केटिंग में, तो डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली आपकी बहुत सारी चीजें हैं। सोशल मीडिया है आपका, गूगल एड्स है। गूगल एड्स में भी आपके डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स होते हैं, डिस्प्ले होते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग होता है, यूट्यूब मार्केटिंग होता है, बहुत सारे मार्केटिंग्स होते हैं उसके अंदर भी आपके। साथ ही साथ आप ऐप मार्केटिंग भी होता है, जो आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे भी आपको दिखते होंगे। अगर आप लोग अभी अगर आप लोग अगर सेल फोन आपके पास है, तो अगर आप लोग प्ले स्टोर या ऐप स्टोर जो जैसा भी फोन यूज कर रहे हैं आप लोग जाओ, तो उसमें आपको एड्स दिखते हैं कि भाई प्रमोशंस के लिए अगर आप किसी पर्टिकुलर थिंग को फाइंड आउट करो, जैसे फ्लिपकार्ट आप फाइंड आउट करो, तो वहां पे आपको स्पॉन्सर्ड में दिख जाता है, एड करके दिख जाता है। तो वो एप्लीकेशन मार्केटिंग होता है, जो कि हम आपको शेयर करते हैं, तो आप लोग देखिएगा एक बार। वो मैम कौन सी थी, एप्लीकेशन मार्केटिंग? हाँ एप्लीकेशन, ऐप मार्केटिंग बोलिए या एप्लीकेशन मार्केटिंग हाँ, बोलिए। मतलब ऐप तो मतलब वो कैंपेन नहीं, वही मैं मतलब जो आपने कैंपेन वाला बताया वो जी वेबसाइट के लिए होता है। हाँ, और ये वाले एप्लीकेशन के लिए, ये आपका गूगल के थ्रू होता है। ओ, ओके, जो जो हमको फोन में एड्स दिखते हैं वो ऐप मार्केटिंग है, एंड जी देन हाँ, जो वेब पे दिखता है वो कैंपेन होते हैं। जी हाँ। अब जैसे हम ओके, हाईलाइट कर रहे हैं, अगर आप एक बार ऑब्जर्व करोगे, हम शेयर कर देते हैं आप लोगों से, तो ये आपका ऐप पे होता है। तो ये इसका भी एक अलग प्रोसीजर होता है कि गूगल प्ले स्टोर पे पहली बात तो हम्म, आपको अपना ऐप बनाना पड़ेगा। ऐप बनाने के बाद गूगल प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा उसकी जिप फाइल को अपलोड करने के लिए। जिप फाइल कुछ आपकी इस तरह की दिखती है। अम, अरे सॉरी, इधर है। ये जो आप फर्स्ट वाला देख रहे हो ना, जैसे ये हाँ, वर्डप्रेस का है, ये तो ये जैसा है, जिप हाँ। फाइल लेकर आपको वहां पे अपलोड करना होता है। उसका भी गूगल प्ले स्टोर का भी एक सर्टेन चार्ज होता है जो डॉलर्स में होता है, मुझे एक्यूरेट नहीं याद है, लास्ट मुझे $15 या $1,500 याद था। अब बढ़ गया है कि कम हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना है। दूसरी चीज ये होता है कि वो वन टाइम होता है, मतलब वो लाइफ टाइम के लिए वन टाइम आप पे करो, फिर आपको जितने एप्लीकेशन अपलोड करने हैं आप उतने एप्लीकेशन अपलोड करो। जब आप ओके, वहां पे अपलोड कर देते हो तब आप गूगल एड्स के थ्रू अपने ऐप का प्रमोशन कर सकते हो। ओके, तो गूगल ये एड्स तो के थ्रू ये फिर जी प्रोसेस हाँ, होता होगा ना इसको, मतलब हाँ। हाँ मतलब जब तक आपका एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे नहीं अपलोड होगा तब तक आप गूगल एड्स के थ्रू नहीं ऐड रन कर सकते हो। हाँ, लाइक फर्स्ट हमने एप्लीकेशन अपलोड कर दिया, फिर उसके अंदर हमको एड्स रन करने जी हैं। हाँ, जी हाँ, उस ओके, तरह से। ओके, ओके, तो या फिर बहुत सारे आपके हो गए, तो आपका हम्म, वेबसाइट का हो गया, उसमें एसईओ हो गए, बैकलिंक्स हो गए। ईमेल मार्केटिंग अभी के टाइम पे थोड़ा सा डाउन है, बिकॉज ईमेल मार्केटिंग अब आपके पेड आ गए हैं। जैसे कि सबसे हाँ, अच्छा तो आपका मेल चिम्प, लोग ज्यादातर कंपनीज मेल चिम्प यूज करती हैं, मेल सेंड इन सेंड ब्लू। करते हैं, हाँ, हाँ।
Sendinblue, Mailchimp ये सब है, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, सब पेड कर दिया। इवन तो गूगल भी अपने आप को काफी चेंज किया है, बट हाँ ये सब आपके आ गए। तो ये सारी और एक और चीज, दूसरी चीज आपकी एक और आती है, जब भी आप कोई भी बिजनेस करो हमेशा ORM अच्छा रखो। ORM मतलब ऑनलाइन रेप्यूटेशन मैनेजमेंट। यहाँ पे हम चैट में लिख Okay. देते हैं आपका ORM, इसका फुल फॉर्म ऑनलाइन रेप्यूटेशन मैनेजमेंट। ये हाँ। कैसे मैनेज करते हैं? हाँ अब देखिए सॉरी, गूगल रिव्यूज हर कोई देता है, ठीक है। या जैसे आप ओके किसी रेस्टोरेंट्स में जाते हो, होटल्स पे जाते हो, गूगल रिव्यूज हाँ आप लोग देते हो कि भाई मुझे ये चीज अच्छा लगे, एम्बियंस अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, मतलब ऐसे देते हो। हाँ सेम चीज ORM बिजनेसेस के लिए होती है। जैसे कि कोई एक एजेंसी है, XYZ कोई एजेंसी है जो आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और आप में से कोई उनके क्लाइंट है। अब ORM रेप्यूटेशन क्या होता है कि अब अगर आपको, या फिर उसको भी छोड़िए, मानिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने ट्रायल क्लासेस लिया और आप लोग आपसे ये बोला गया कि जो मेरी ट्रेनर है बहुत अच्छा पढ़ा रही है, और बहुत हाइप बना के रखा गया, लेकिन जब आप लोगों ने क्लास लिया तो आपको मेरा पढ़ाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो अब आपको जब अच्छा ही नहीं लगा, तो अगर आपसे कोई रिव्यू मांगेगा मेरे बारे में, तो आप कोई अच्छा तो रिव्यू दोगे नहीं, आप तो यही दोगे कि भाई मैं मुझे समझ में ही नहीं आया, बहुत बेकार पढ़ा रही है, चेंज करो अपना ट्रेनर, या फिर XYZ जो भी आपके पर्सनल रिव्यूज होंगे, ठीक। तो अब मानिए अगर आप लोग ने कोई 4 लोगों ने रिव्यू दिया, अब किसी न्यू को अगर आना होगा, तो सबसे पहले अपना क्या होता है, इधर वो कोई कंपनी हो चाहे वो कोई शॉपिंग प्रोडक्ट हो, हम लोग क्या हाँ चेक करते हैं, कस्टमर रिव्यूज चेक रिव्यूज। करते हैं हाँ तो कोई दोबारा क्यों पढ़ेगा मेरे से, सीधे ये बोलेगा भाई कोई और ट्रेनर है तो बताओ, बट मुझे शिवांगिनी से तो नहीं पढ़ना है, ये होगा बात। ओके तो फिर अब क्या मैम होगा। तो हाँ हाँ वो बोलिए। तो फेक भी तो कर सकते हैं ना हम। फेक फेक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको उसका दूसरा वो भी तो अल्टरनेटिव भी तो दिया जाएगा। हाँ लाइक मैम एवरी कंपनी में क्या होता है ना कि व्हेन वी आर वर्किंग सो दे गिव अस देयर लिंक्स कि आप हमको यहाँ पे रिव्यू जैसे हाँ एम्बिशन बॉक्स है, ग्लास टूर है, हाँ राइट, जो वो गूगल इसलिए है। है कि अब मानिए हाँ कि अब मेरा पढ़ाना ही अच्छा लगे, या तो कंपनी मुझे निकाल ही देगी, चाहे वो फेक हो चाहे वो हो, भाई मेरी तो चली गई ना वो वाली चीज है। हाँ तो या तो हमको कंपनी निकाल दे, या तो मुझे वार्निंग मिलेगा लास्ट कि भाई अब आपको, मतलब आपके साथ एक आपका सीओ कोई किया बोल जाएगा सकते हाँ हो कि कुछ भी एक हैंडल के लिए रहेगा, जिससे कि आपका एक ऑब्जर्वेशन रखा ऑडिट जाए उस चीज में को भी लेकर, ऑडिट हाँ होते हैं वो हाँ ऑडिट करने के लिए। तो उससे हाँ आपको रिव्यू दिया जाएगा कि कोई आपको, मतलब या फेक हो चाहे आपका या फेक करेक्ट हाँ हो, वो ना हो सके। अब जब ये चीज भी सही हो जाएगी, तो फिर आपसे फिर से जेन्युइन रिव्यू मांगा जाएगा। तो अगर जो रिव्यू सही होते हैं जेन्युइनली, वो रिव्यूज पे आपका परफॉर्मेंस या फिर आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। दूसरी चीज, ओके गूगल बुद्धू बिल्कुल भी नहीं है। जब आप रिव्यू देते हैं ना, तो हर एक चीज का, डिवाइस का, चाहे वो आपका सेलफोन हो चाहे वो आपका लैपटॉप हो, हर एक चीज का क्या होता है, IP एड्रेस होता है, ठीक है। करेक्ट हाँ तो करेक्ट आपके हाँ लैपटॉप का भी आपका है, आपका मोबाइल का भी है। तो गूगल बिल्कुल भी बुद्धू नहीं है। जब आप मानिए स्टू वैली के लिए मेरे लिए रिव्यू दे रहे होंगे, चाहे वो गुड हो चाहे वो बैड हो, ठीक है, तो आपके एक डिवाइस से, एक जीमेल आईडी से आप एक ही रिव्यू दे पाओगे। जब आप हाँ दूसरा एक ही रिव्यू रिव्यू देंगे, वो हाँ बिल्कुल भी वैलिड नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। 1 IP एड्रेस, भले आपकी जीमेल आईडी एक ही, मतलब मोस्टली तो लोग मल्टीपल जीमेल आईडीज यूज करते हैं, तो IP एड्रेस से ही वो रिव्यू का कंसिडरेशन होता है। अगर स्टू वैली पे आपने 3 जीमेल आईडी से क्या बोलते हैं दिया है रिव्यू, लेकिन IP एड्रेस तो आपका सेम रहेगा ना, या एक लैपटॉप, एक क्या बोलते हैं आपका वो रहेगा, सेलफोन रहेगा, चलिए आप किसी और का भी यूज किए, तो उसमें अपना जीमेल आप थोड़ी ओपन करोगे, उसका डिवाइस, उसका IP एड्रेस, तो वो एक ही कंसिडरेशन रखता है, उससे ज्यादा वो नहीं रखता है। इसलिए रिव्यू का भी एक तरीका होता है, जिसमें आप अगर एक्यूरेट देखोगे ना, जैसे 3.0, 4.0, ये करेक्ट रिव्यू का फॉर्म नहीं होता। हमेशा 0 की जगह एक डिजिट वाला जो होता है ना, वो आपका एक करेक्ट रिव्यू का, आप बोल सकते हो, तरीका होता है। तो जब 10 रिव्यू, 3.0 मीन्स जैसे रेटिंग क्या क्या है? रेटिंग्स जो आती हैं, जी हाँ, ओके 3.0 करके ऐसे रेटिंग्स और स्टार्स बने रहते हैं, 4.0 रेटिंग्स एंड स्टार्स बने रहते हैं। तो ये हाँ करेक्ट एक तरीके से नहीं होता, आपका कोई डिजिट, दोनों में डिजिट होने चाहिए, 3.1, 3.2, 3.3 ओके समथिंग, ऐसी हाँ रेटिंग्स होनी चाहिए। तो वो, और गूगल का ये भी होता है
कि जब आपके 10 to 15 रिव्यूज होते हैं ना, तो उसको कहीं पे जाकर वो 1 या 2 में कंसिडर करता है, स्टार में कंसिडर करता है। ऐसा नहीं है कि एक रिव्यू आया 1 स्टार, नहीं। जब कुछ एक बल्क अमाउंट में रिव्यूज आते हैं, मोर देन 10 या 15 रिव्यूज आते हैं, तो वो 1 स्टार कंसिडर होता है वहां पे। तो ऐसे ORM होता है। तो ऑनलाइन रेप्यूटेशन में ये होता है। दूसरी चीज, हाँ, अगर मानिए मेरे बारे में कोई गलत रिव्यू दिया है, तो जो भी रिव्यू हैंडल करेगा उसको जरूर उस मैसेज का क्या करना चाहिए, रिप्लाई देना चाहिए कि आपको कोई कॉम्प अप दे रहे हैं, या फिर आपको हम दूसरे ट्रेनर से बुलवा रहे हैं, या जो भी उनका अपना सॉल्यूशन होगा। तो ऐसा नहीं है कि बैड रिव्यू आ गया तो आप रिप्लाई ना दो, आप रिप्लाई दो, अपॉलॉजी लो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट आपका होगा। मे बी शायद सामने वाला थोड़ा और आपसे मतलब हो जाए तो और बात करना, मतलब नहीं होता आपका कोर्स ले या फिर कुछ भी ले इस तरह से। तो ये सारी चीजें ऑनलाइन रेप्यूटेशन में मैटर करती है, बिल्कुल मैटर करती है। अब जैसे कि आप लोगों ने एक वो सुना होगा, सैम होटल करके आया होगा, एक ऐप है जिसके अंडर में बहुत सारे होटल्स रहते हैं। जैसे कि Yeah. कैसे आपका एयरबीएनबी है तो उसके अंदर होटल्स रहते हैं, आपके रिजॉर्ट्स एंड कॉटेजेस इस तरह से। वैसे एक फैम होटल करके है, उसके अंदर भी जितने छोटे छोटे होटल्स रहते हैं ना, वो सारे होटल्स उसके अंदर रहते हैं। लेकिन फैम होटल का रिव्यू सबसे वर्स्ट है, सबसे वर्स्ट है। वो इमेजेस आपको इतनी सुंदर दिखा देंगे ना कि भाई आपको लगेगा कि भाई आप कहीं टूर पे जा रहे हो तो आप इसको रिकमेंड करो, लेकिन आप जब जाओगे ना, आपको 0% फैसिलिटी देंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे, और उन लोग क्या करते हैं अपने रिव्यूज को, अपने कस्टमर्स के बैड रिव्यूज को हाइड करने के लिए, जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि फेक रिव्यूज का, उसके ऊपर वो अपने ही सारे लोगों से क्या करते हैं, अच्छे अच्छे रिव्यूज को अपलोड कर देते हैं। सारे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हो गए, कॉलीग्स हो गए, खुद हो गए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नहीं होते वो रिव्यूज को, कि जिससे कि वो बैड रिव्यू नीचे दब जाए। तो ये बहुत गलत तरीका होता है। ये ORM ऐसे नहीं किया जाता, बिल्कुल भी ऐसे नहीं किया जाता इस तरह से। हाँ, जस्ट ये बहुत छोटा सा कंप्लीट ही होने वाला है सेशन अपना। तो ये मैम आपके ये तो हाँ बोलिए। तो वन टाइप ऑफ फ्रॉड ही हुआ ना, कि मतलब दिखाया कुछ गया और फिर कर हाँ, मतलब जब तो उस पे गए तो रियलिटी कुछ और ही थी। ये फ्रॉड भी है, और इसमें लोग बैड रिव्यूज डालते भी हैं। बैड क्या डालते हैं, जो करेक्ट उनका रिव्यू है, जो उन्होंने प्रोवाइड करो जेन्युइन रिव्यू डालते भी, बट उन लोग क्या करते हैं, पुराने रिव्यूज को हाइड करने के लिए, उनको ये तो पता नहीं है, उन मल्टीपल मल्टीपल 4-5 रिव्यूज अच्छे अच्छे डलवा देते हैं, और जो भी अपने फ्रेंड्स और वो है। बट हाँ, जब भी आप लोग भी, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 रिव्यूज देखो, बिल्कुल भी नहीं। जब भी आप देखो, आप न्यूएस्ट से ज्यादा वीक्स के रिव्यूज देखो, कि हर वीक कोई ना कहीं जाता है, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो कहीं घूमने के लिए भी अपना वेकेशन का हो। तो हमेशा वैसे, हमेशा फर्स्ट 2-3 रिव्यूज पे नहीं। दूसरी चीज, जब भी आपको ऐसा लगे कि भाई बहुत अच्छी चीज है, तो आप वहां के जो भी ओनर है या फिर जो भी रिसेप्शनिस्ट है या कोई भी, आप उनसे कॉल करके वहां की ओरिजिनल पिक्चर्स, और स्टिल अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है, आप वीडियो कॉल करवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। एयरबीएनबी में भी ऐसा होता है कि जो ओनर्स होते हैं वो वीडियो कॉल करके आपको पूरा अपना जो उनका विला है या फिर जो भी उनकी प्रॉपर्टी है वो पूरा दिखाते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको रिव्यूज पे भी भरोसा नहीं है, इमेजेस पे भी भरोसा नहीं है, किसी पे भी आप कॉल करो, और नहीं हो रहा, छोड़ो, सैकड़ों भरे हुए हैं होटल, आप ही का थोड़ी है वो वाली चीज। तो वैसे आप कर सकते हो। लेकिन फैब होटल वर्स्ट है, बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस है उसका। अब देखिए, ये कुछ बेसिक डिजिटल मार्केटिंग के आप बोल सकते हो शॉर्ट कीवर्ड्स है, कि आपका डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, आप उसको स्टार्ट स्टॉप एंड एडिट कर सकते हो, चाहे कोई भी कैंपेन हो, फेसबुक है, कोई भी हो। ऑडियंस को ट्रैक कर सकते हो, लोकेशन को आप डिफाइन कर सकते हो, और ट्रैकिंग पॉसिबल होती है इन सब चीजों में, कि कहाँ पे आप वर्क करना चाहते हो, कहाँ पे आप स्टॉप करना चाहते हो, कहाँ पे आप चेंज करना चाहते हो। साथ ही साथ आपका जो डिजिटल मार्केटिंग होता है वो भी 2 टाइप्स का होता है, एक होता है आपका इनबाउंड, एक आपका होता है आउटबाउंड। इनबाउंड में क्या होता है, ऑनलाइन जितनी भी चीजें होती है सब आपके ऑनलाइन चल रही होती है, ठीक है। आउटबाउंड में यही चीज आपका ट्रेडिशनल में चला जाता है, कि आपको जा जा के चीजों को क्या करना पड़ता है, कन्वे करना पड़ता है। और इनबाउंड में अपने आप कस्टमर्स आपसे अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पे आपकी नीड्स आ गई, कि डिजिटल मार्केटिंग की क्यों नीड है, बिकॉज आपके ब्रांड को वो ज्यादा आगे तक बढ़ाता है, बिजनेस को डेवलप करने के लिए होता है, और टाइम सेविंग है, ठीक है, और टाइम सेविंग जेन्युइन है।
बिकॉज आपका बिजनेस अगर है, अगर आप मानिए अगर आपका कोई छोटी सी कंपनी है 50 एम्प्लॉयज की, 30 एम्प्लॉयज की, तो कोई आपका वेबसाइट बना रहा है, कोई एसईओ कर रहा है, कोई गूगल एड्स कर रहा है, कोई सोशल मीडिया कर रहा है, तो जब ये पैरेलली सारा काम एक बार में चलता है तो कहीं पे आपका बिजनेस क्या होता है, लोगों तक पहुंचने के लिए हेल्प करता है। फिर आपका स्कोप है जॉब का, जैसे बोला कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा है कि जिसको पूरी डिजिटल मार्केटिंग पसंद है वो उसके लिए जाए। अगर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी आपको कोई पर्टिकुलर फील्ड पसंद है, जैसे कि सोशल मीडिया, एसईओ, वर्डप्रेस, गूगल एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, गूगल एड्स, पीपीसी, अगर इनमें भी किसी को इंटरेस्ट है तो वो ऐसे भी अपनी फील्ड को क्या कर सकता है, आगे या फिर अपने करियर को आगे पुश कर सकता है। हाँ, इनिशियल लेवल में अगर जॉब की बात करें इसके अंदर, तो जॉब आपके इंटरव्यू बेसिस पे है। बहुत कंपनीज ऐसी भी होती हैं कि वो बोलती है कि मंथली हम आपको 25-30 ऐसे देंगे, बट आफ्टर जॉब वो कम पे आ जाती है, तो मत ज्वाइन करो उस तरह की कंपनीज को। जो जेन्युइन है वैसे रखो। लिंक्डइन पे एक्टिव रहो। लिंक्डइन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है और लिंक्डइन से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जॉब के लिए। वहां पे आपको सारी अच्छी कंपनीज मिलेंगी, सारे अच्छे आपको ओनर्स, एचआरस, सीईओ, सीएमओ सब आपको अच्छे मिलेंगे। इवन तो सारे एम्प्लॉयज भी आपको वहां पे मिलेंगे जिनसे आपको कोई भी कंपनी अगर अच्छी लगती है तो आप उनसे बात कर सकते हो उस चीज के लिए। इवन तो जॉब के लिए भी लिंक्डइन सबसे अच्छा है एक्टिव रहने के लिए। मेरे अकॉर्डिंग डेली का 5 मिनट्स भी अगर आप देते हो, 5 मिनट से ज्यादा आप खुद बोर हो जाओगे, हम खुद बोर हो जाते तो हम आपको भी नहीं बोलेंगे। 5 मिनट सफिशियंट है आपको टाइम देने के लिए लिंक्डइन पे। पूरे दिन में कोई भी 5 मिनट आप दो टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लिंक्डइन सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा है लिंक्डइन। तो ये इन शॉर्ट आप बोल सकते हो आपका डिजिटल मार्केटिंग है। और ये बेसिक इंट्रोडक्शन था डिजिटल मार्केटिंग का। तो जो जब भी हम लोग नेक्स्ट में मिलेंगे तो हम लोग सोशल मीडिया से अपना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, बिकॉज सबसे इजी से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे एक लेवल अप होते चलेंगे हम लोग। होपफुली अच्छा लगा हो आप लोगों को। यहाँ पे हम एंड करते हैं सेशन को। और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ मैम, चाहिए तो हम शेयर भी कर देंगे। हाँ बोलिए ना। इनबाउंड आउटबाउंड कॉन्सेप्ट का थोड़ा और एक बार हाँ हम थोड़ा फिर बता समझाइए। देते हैं। देखिए, इनबाउंड कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हो, जैसे कि मानिए आप मिंत्रा है ऑनलाइन मार्केटिंग, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है, आप डायरेक्ट कस्टमर से बात कर सकते हो, मतलब कॉल करके आप बात कर सकते हो। तो वो पूरा आपका इनबाउंड, पूरा का पूरा इनबाउंड आपका चल रहा है। मतलब मिंत्रा आपके पास नहीं आ रहा है कि मेरे प्रोडक्ट को क्या करो, आप परचेज करो। आप परचेज कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम, कुछ डाउट आ रहे हैं, आप उनके कस्टमर केयर पे बात करो, सारा ऑनलाइन आपका हैंडल हो जा रहा है। ये आपका इनबाउंड है। आउटबाउंड में क्या हो जाता है, पहली बात तो अपने प्रोडक्ट के लिए आपको खुद घर 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 जाना पड़ता है। मेरे कस्टमर भाई ये सामान ले लो, ये सामान ले लो, ये सामान ले लो। जब इस तरह से आप बात करते हो, तब जब आप 100 घर जाते हो, तब कोई कोई 5 या 10 घर होंगे जो आपके उस प्रोडक्ट को क्या करेगा, वो परचेज करेगा। ये आपका आउटबाउंड हो जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आप होम टू होम ऐसे आप जा रहे हो, घर घर जा रहे हो काम करने के लिए और अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन ही ब्रेक हो जाता है। क्योंकि अब अगर आपके किसी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी, आप कहाँ बात कर पाओगे, बिकॉज ये वन वे कम्युनिकेशन रह गया। वो आया, आपने सामान लिया, आप दोनों का कनेक्शन वहीं पे ब्रेक, उसके बाद खत्म। फिर वो कभी दोबारा आपके घर वो आने ही नहीं वाला बंदा। तो ये आपका आउटबाउंड हो जाता है। अभी समझ में आया? इनबाउंड आउटबाउंड नहीं आया तो हम फिर से रिपीट कर सकते हैं। नहीं मैम, ओके। ये हम शेयर कर दे आप लोगों से शीट जो है ग्रुप में। हाँ मैम। ठीक, यस मैम। और ओके। मैम हाँ एक बोलिए। और क्वेश्चन है। अभी ना आपने जैसे वो जॉब वाला बताया ना, जो स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पे, हाँ तो उसमें आपने कुछ फील्ड्स बोली थी कि लाइक सोशल मीडिया, एसईओ और 4 to 5, तो क्या वो बता सकते हैं? 4 to 5, अच्छा वो टाइम का एक्चुअली बोले होंगे। मे बी मेरा ये था कहने का मतलब कि जब आप कोई पोस्ट करते हो ना सोशल मीडिया पे, अगर ये वाला तो नहीं आप नहीं, मुझे ये वाला नहीं। हाँ वो जो स्कोप ऑफ जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, जो जॉब के पर्सपेक्टिव से आप बता रहे थे, अच्छा तो उसमें प्रोफाइल्स आपने बताई थी कुछ। अच्छा हाँ ये वाले हाँ, आप जॉब अपॉर्चुनिटी का देखिए, इसमें क्या करेक्ट। होता है ना, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे कि कैसे कैसे आपका आ जाता है कि हाँ इनिशियल लेवल में कोई जाता है तो ज्यादातर डिजिटल मार्केटिंग की ही, एग्जीक्यूटिव की ही ज्यादा ओपनिंग्स रहती है, अगर कोई एंट्री लेवल पे जाता है तो।
और Correct, हाँ उसके बाद अब माने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखेंगे, उसी के अंदर हाँ आप एसईओ सीखेंगे, गूगल एड्स सीखेंगे, गूगल एड्स के भी अंदर आप पीपीसी मतलब पे पर क्लिक या सर्च इंजन मार्केटिंग और यूट्यूब मार्केटिंग सीखेंगे। फिर आपका ओके गूगल एनालिटिक्स। तो अब होता क्या है कि किसी को सिर्फ गूगल एड्स में ही जॉब चाहिए कि उसको गूगल एड्स इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो वो हाँ उसी में इतना अपने आप को मतलब आप मास्टर कर ले कि वो अपना करियर ही सिर्फ गूगल एड्स के लिए बना सकता है। मतलब ओके ऐसा नहीं है स्पेसिफिक फील्ड कि है ये, हाँ हाँ वो स्पेसिफिक फील्ड के लिए भी बना सकता है, क्योंकि गूगल के ओके अंदर आपको गूगल एनालिटिक्स भी आएगा, सर्च कंसोल भी आएगा, ये गूगल डेटा स्टूडियो आएगा, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर ओके आप गूगल के लिए जाओगे तो आपको कोई एसईओ करने नहीं देगा देगा, बट आप ज्यादा उसी में रहोगे, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। ओके मैम जी छोटी कंपनियों में तो कॉमन ही रहता है ना कि डिजिटल एग्जीक्यूटिव मतलब हाँ अगर मार्केटिंग। आप स्टार्टअप कंपनीज में जा रहे हो ना तो वो कॉमन है डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। उसके अंदर जब आप जाओगे तो वो खुद आपको बता देंगे कि आज का आपका टास्क मतलब क्या क्या है, हाँ तो रोल वैसे क्या आप है, कर सकते हो। हाँ तो बहुत एंट्री लेवल पे आपको एग्जीक्यूटिव इंटर्न इसी की ही पोजीशन पे आपको मतलब वो किया जाता है, लिया जाता है। ओके ओके। एंड ये वर्डप्रेस का भी जैसे मुझे पूछना था कि हाँ वो कैसे रिलेट करता है लाइक इन डिजिटल मार्केटिंग, वो देखिए पूरा प्रोसेस। वर्डप्रेस का तो हम श्योरिटी नहीं है इसका, बहुत बहुत एक्सेप्शनल कंपनी होती है, मे बी 10-15% या 20% आप राउंड ऑफ कर लो इसको। तो हाँ ज्यादातर एसईओ का रहता है, क्योंकि एसईओ ओके जो आप यहाँ पे सीखोगे ना वर्डप्रेस पे, वही आपको कोडिंग बेस्ड वाली कंपनी में भी करना होगा, मतलब जो वेबसाइट होती है कोडिंग बेस्ड वेबसाइट होती है, और चाहे हाँ अगर हाँ उनकी वर्डप्रेस है तो वो। तो एसईओ दोनों के लिए इक्वल है, मतलब जो आप एसईओ सीखोगे वो वर्डप्रेस प्लस कोडिंग वेबसाइट दोनों के लिए हम आपको कॉमन सिखाएंगे। अच्छा तो वर्डप्रेस बेसिकली लाइक प्लेटफॉर्म है मतलब। वर्डप्रेस देखिए एक एप्लीकेशन है, आप बोल सकते हो, जो पीएचपी कोडिंग पे ही बना हुआ है। तो मानिए जिनको कोडिंग ओके अगर नहीं आती है और उनको अपना हाँ वेबसाइट बनाना है, तो वो हाँ वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। वो कोडिंग जितनी तो मतलब नहीं बनेगी, बट हाँ गूगल पे वो वैसे ही वर्क करेगी, ऐसा है। अच्छा वर्डप्रेस से डिजाइनिंग कर सकते हैं मतलब हाँ हम। आप डिजाइनिंग कर सकते हो, कंटेंट डाल सकते हो, ओके उसका भी आप एसईओ कर सकते हो, उसको भी आप अपने अकॉर्डिंगली ही अट्रैक्टिव कर सकते हो। बट हाँ जैसे ओके कोडिंग वाली थोड़ी सी फ्रीक्वेंट होती है, बिकॉज कोडिंग और हाँ उनमें तो डिफरेंस है ही, जो है वो है। तो इस वजह से क्या होता है कि जिनको मतलब ये कोडिंग थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है, अगर आप किसी को हायर करते हो तो वो हाँ एक्सपेंसिव भी आपसे लेता है डेवलपर। और वही चीज हाँ वर्डप्रेस आपका वो काम इजी कर देता है, बिकॉज वो आपको थीम दे देता है। अब उस थीम थीम में ओके आपको क्या चेंज करना है, क्या ऐड ऑन करना है, वो आपके हाँ हाथ में रहता है। टेम्पलेट तो काइंड ऑफ थिंग वो हम हाँ क्रिएट कर आप ये बोल सकते हैं। सकते हो टेम्पलेट काइंड ऑफ थिंग ओके आपको दे देता है। तो उस हाँ हाँ थीम्स में आपको क्या चेंज करना है, क्या ऐड ऑन करना है, किस तरह से करना है, करेक्ट तो आप वैसे उसको बना सकते हो। ओके ओके। हाँ तो लेकिन जो वर्डप्रेस पे भी हम वर्क करेंगे लाइक आप। जी हाँ करेंगे वर्डप्रेस पे। ओके हम आपको मेरा जो रहेगा वैसे तो हम आपको सबसे पहले इजी सिखाएंगे सोशल मीडिया, उसके बाद कहीं वर्डप्रेस और फिर एसईओ पे लेकर जाएंगे, ऐसे ओके करवाएंगे आप लोग को। हाँ ठीक है ओके एक बार आप लोग देख लेना, ये आप ही लोग का ग्रुप है, हम इसी में शेयर किए आप लोग को हाँ हमारे ये ना। जी हाँ यस ये आप लोग हाँ के ग्रुप हम में हमने किया है। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम नेक्स्ट क्लास कब होगी अपना? नेक्स्ट क्लास अभी कोई है क्या, कि मुझे भी नहीं आइडिया इस वजह से। सीता आप है क्या वहाँ पे? Yes, ma'am, I'll हाँ update on the WhatsApp group about the ओके timings and the dates. ओके थैंक यू मैम। Yeah, thank you. चलिए होपफुली आप लोग को अच्छा लगा वो क्लास, फिर हम लोग नेक्स्ट में मिलते हैं। श्योर हाँ ओके मैम वेरी अभी गुड थैंक यू मैम। वेलकम, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू